Let's talk menopause on Mrs. India. I feel that there are issues or health issues addressed very well on reproductive health of a woman, be it premenstrual, postmenstrual, or during menstrual, be it PMS, be it pre-pregnancy, during pregnancy. In fact, nowadays people are being aware about the depression post-pregnancy, right? The nutrition is needed during pregnancy. Everything has been discussed. There are so many issues. Those are related to the reproductive system of a woman. So, of course, being woman is not easy. The reproductive system is a very important part of women's health, and that is what makes women more stronger. At the same time, that comes with quite a complications. But I feel on the personal level, these issues are quite discussed. Maybe because post menopause or during menopause, the woman is not as productive or as useful to the society, because she cannot produce the baby, or she is not young enough to serve the society or serve the family, and maybe that is the reason that menopause is not discussed on the scale that these things are discussed, like the pregnancy, post pregnancy, or whatever, the menstrual, because the regular menstrual cycle is directly responsible for the pregnancy, or the conceiving of a child. So I think society somewhere, they want just to take from a woman, so as long as she's productive, they want to discuss about it. The moment she want family to support her, the moment she wants society to support her, or the moment that comes that they have to help her, they have to stand her, because she's going through menopausal phase, I think people don't want to discuss about it, and that is the reason I think it has not been discussed. But we have decided that we are going to speak about it, because premenopausal phase is something quite a crucial, and it's quite a long, that we really cannot ignore. The mental health, the physical health, everything is very crucial in that phase, and every woman go through, so I think to discuss this topic, I think there's nobody else perfect than Dr. Anita Mishra, because she herself is a gynecologist, and I think she has seen as many cases during, in all phases of life, be it from the premenstrual phase, the child phase of a woman, till the elderly phase of the woman. So she has seen so many in her 17 years of a career. She herself is a gynec. She herself, now being a reigning queen, I think her views will be very important. So she's here at Mrs. India, so I thought, okay, let's talk about menopause. So Dr. Anita, what is menopause basically, and when it happens, why it happens, and what could be the complications regarding that? जब आफ्टर 40 और सम पीपल गेट इट आफ्टर 50 ऑल्सो, सेसेशन ऑफ मेंसेस बोलते हैं, जब 1 साल से ऊपर हो उसको मेनोपॉज बोलते हैं. तो जैसे आपने बताया कि विमेन जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं. Exactly. चाहे मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे पोस्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद हो, और चाहे मेनोपॉजल हो, थ्रू आउट लाइफ उनका कुछ न कुछ गड़बड़ हार्मोन्स में होता रहता है. दैट इज़ वाई, एज यू सेड, वुमेन आर द मोस्ट सफर्ड वंस ऐसे. लेकिन ये बात नहीं है कि शी इज़ नॉट प्रोडक्टिव, दैट इज़ वाई वी आर नॉट गिविंग हर एनी इम्पोर्टेंस. दैट इज़ बिकॉज शी हरसेल्फ डजंट नो कि सम चेंजेस are occurring in her. She doesn't give importance to that, because I see so many patients per day. But menopausal अगर कोई पूछे तो मे बी वीक में 5 लोग आते हैं menopausal सिम्टम को लेके. वो डायरेक्ट अपने को दिखाने नहीं आते हैं, अपना बहू को दिखाने आते हैं. प्रेग्नेंट है, कहते हैं मेरा भी डॉक्टर साहब पैर दर्द हो रहा है, थोड़ा मुंह लाल लाल होता है, इस तरीके से. So they don't know, they are not aware कि something called menopausal symptoms are also there and I have to get treated for it. They do not know. तो ये है कि अब मेनोपॉजल सोसाइटी भी गायनेकोलॉजिस्ट लोग बनाए हैं टू मेक पीपल अवेयर. Exactly. They should know कि some changes are taking place, and if they are suffering, there are medicines, there are ways to deal with it. Yeah.
इसीलिए जो है वी हैव टू मेक पीपल अवेयर। यू नो लाइक जो मैंने नोटिस किया, ठीक है, तो मेनोपॉजल के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस है कि ड्यूरिंग मेनोपॉजल फेज जो है वुमन थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, या चीज़ें भूलने लगती है ना, चीज़ें भूल जाती हैं, या फिर बहुत इरिटेटिंग उनका बिहेवियर होता है, जल्दी बहुत रिएक्ट करती हैं। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ के कुछ कमेंट्स थे, यू नो, फॉर द सीनियर एक्टर्स एंड ऑल की शी अरे मैन आंटी इज गोइंग थ्रू मेनोपॉजल फेज एंड ऑल दैट। सो पीपल know that there is a menopausal phase, but instead of understanding that phase, they have used it as a weapon to tease her or to, you know, degrade her, you know, matlab there was, I think, some writer what said something, and young generation के जो actors है, they started telling the aunties going through PMS or premenopausal phase। तो people know, और जो comment कर रहे थे वो भी ladies थी, तो people know, but instead of helping that, मतलब उसका कारण क्या हो सकता है कि like woman is not allowed to age, or woman is not allowed to have her own time, right? जब जैसे कोई चिड़चिड़ा होता है तो you know, I feel that somehow this is something you know, woman has to take a control, right? जैसे कि आपने बताया कि वो ट्रीट हो सकता है, राइट? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल शी शुड नो व्हाट आर द सिम्टम्स। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, जैसे हॉट फ्लैशेस क्या होता है कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वार्म फील करने लगता है। अच्छा। और यहाँ तक कि उसका चेहरे भी मतलब उसका गाल वाल लाल लाल दिखने लगता है। अच्छा। और उसको मूड चेंजेस होता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी आना, और फिर नींद ना आना, डिप्रेशन होना बात बात पे, ये सब मेंटल सिम्टम्स है। और एस्ट्रोजन कम होने की वजह से थोड़ा सा कैल्शियम की कमी हो जाता है, और हड्डियों में जैसे वो बताते हैं कि कमर दर्द हो रहा है और लेग पेन हो रहा है। तो वी शुड नो कि मतलब शी इज इन मेनोपॉज, शी हैज टू टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, शी हैज सिट ऑन द सन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स इन अ डे। सो ये सब जानना जरूरी है। और कुछ डाइट में कुछ चेंजेस होने चाहिए। डाइट में कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि अब HRT का बहुत ज़्यादा मतलब गायनेकोलॉजिस्ट लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट्स है। हार्मोन्स देने से कैंसर ब्रेस्ट और कैंसर यूट्रस क्या क्या सब होते रहते हैं। तो हम लोग अब अल्टरनेटिव मेडिसिन पे आ गए हैं, इवन दो वी आर इन मतलब एलोपैथी प्रैक्टिस। इसको बोलते हैं SERMs, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। वो ईस्ट्रोजन जैसे बिहेव करता है, बट वो हार्मोन्स नहीं होता है। अच्छा। और द गुड इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स दैट हैज, बट बैड इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स दोस कंपाउंड्स आर नॉट हैविंग। और वैसे सर्टेन फूड है, जैसे सोया चंक्स आता है, दैट बिहेव्स लाइक ईस्ट्रोजन, इट हैज इफेक्ट लाइक ईस्ट्रोजन। सो इस तरीके का फूड खाना है, और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, क्योंकि उनको हड्डी में दर्द होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। तो जैसे दूध रोज पिए, मतलब कैल्शियम रिच फूड खा ले, प्रोटीन रिच फूड खा ले, ये सब मतलब अपना ध्यान रखेंगे। वो एक्सरसाइज करें, क्योंकि कितना भी आप कैल्शियम खाओगे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इनटू द बॉडी डज नॉट टेक प्लेस। सो शी हैज टू डू मतलब पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, सटल एक्सरसाइज। अब ये भी नहीं कि मतलब वो एरोबिक्स करे या स्किपिंग करे, इस तरीके से ना करे कि उसका नी पे जोर पड़े, ऑलरेडी कमजोर उसका हड्डियां रहते हैं। तो शी कैन गो फॉर वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और नॉर्मल। मगर हमारे फैमिली मतलब हमारे जनरली इंडियन सोसाइटी में होता है कि मम्मी जो होती है, मम्मी सपोज टू सर्व यू, राइट, वाइफ सपोज टू सर्व यू। तो जैसे हम जो है प्री मेंस्ट्रुअल फेज में जाते हैं तो होते हैं, तो हमारी मम्मियाँ होती हैं हमें समझाने के लिए कि आपको ऐसे करना है, यू नो, आपको ये करना है, आपके न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है। तो अभी जब सेम मम्मी इज गोइंग थ्रू रिवर्स फेज, राइट, मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल से वो मेनोपॉज होने जा रहा है, तो उस फेज में एज एजुकेटेड वी शुड टेल हर। उन्होंने जब हमको प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन होता था, हम चिड़चिड़े होते थे मेंसेस के टाइम में, तो हमारा माँ लोगों ने हमको संभाला। जब वो पोस्ट मेनोपॉजल चिड़चिड़ेपन से गुजर रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, तो ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हाँ मम्मी तुम दूध पी लो, तुम थोड़ा सा मतलब विटामिन डी ले लो, चलो तुम अच्छा मतलब प्रोटीन रिच खाना खा लो, तुम्हारा कुछ टेस्ट कराते हैं। तो उनका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज बनता है मेरे। तो आई थिंक न्यू जनरेशन मोर देन लाइक हम वी डिडंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी। लाइक मुझे तो नहीं पता कि मेरी मम्मी का मेनोपॉज कब हो गया, बट आई थिंक जो न्यू जनरेशन है उनको तो ये समझना चाहिए कि मम्मी इज गोइंग, अगर मम्मी या कोई भी आंटी, जिस तरह से मैंने बताया एग्जाम्पल दिया था कि द वे दिस द राइटर वाज बीन अटैक्ड एंड दीज वर लाइक यू नो ए लिस्टेड एक्टर्स, तो उनको अटैक करने से अच्छा है कि यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि दिस इज समथिंग दैट
इवन जिसने ये अटैक किया था, दैट लेडी ऑल्सो गोइंग टू गो थ्रू दिस मेनोपॉजल इफेक्ट, राइट? सो इंस्टेड ऑफ विलीफाइंग दैट और feeling irritated about their behavior, I think they should be taken care, they should be understood. और I think ये सबके साथ होता है, like everyone who is going through menopause behave like this, or it depends. It depends. Some people जैसे मेंसेस के टाइम में कुछ लोग इतना ज़्यादा प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन हर किसी को नहीं होता कुछ है, लोगों हाँ। को कोई दिक्कत नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन वेरिएशन इज देयर. लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कैल्शियम की कमी उन्होंने तो सबके साथ होता है. हो सकता है हॉट फ्लैशेस सबके साथ ना होता हो, हाँ, बट इन कुछ बॉडीज में कमी, मतलब एस्ट्रोजन की कमी की वजह से वो तो सब लेडीज में होता है. ladies तो लेते हैं. सप्लीमेंट्स बेटर टू टेक ऑल द लेडीज. अच्छा. एंड सर्टेन टेस्ट जैसे एज के साथ डायबिटीज, बीपी, ये सब टेस्ट कराते रहे. So, so I think that is the thing that we have to take care of nutrition. But आपको health, exercise, like timings, sleeping, इस इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो स्लीप डिप्राइव्ड रहती हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब स्लीप के लिए भी और उनका मूड के लिए थोड़ा सा हम लोग प्यार से उनसे पेश आए. ठीक है, उनका मूड वेरिएशंस है उसको हम लोग समझने की कोशिश करें और न्यूट्रिशन में भी उन खाने में हम लोग एज यंगस्टर्स मतलब उनका मदद करें. तो उनका ख्याल रखना आई थिंक हमारा ड्यूटी बनता है. और कुछ टेस्ट है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, चाहे वो मैन हो चाहे लेडीज हो, तो उनका बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, तो कुछ अच्छा. बेसिक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए. और हो सकता है कैंसर सर्विक्स, कैंसर यूट्रस, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब हो सकता है. Okay. तो रेगुलर एक साल में एक बार किसी गायनेकोलॉजिस्ट को ले जाके दिखा दें कि ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, मैमोग्राम करा ले कि ब्रेस्ट कैंसर तो अर्ली स्टेज में नहीं है, या कैंसर सर्विस का स्क्रीनिंग करा ले. और तो ये कॉम्प्लिकेशंस मेनली ड्यूरिंग मेनोपॉज बढ़ते हैं. चांसेस आर देयर कि मतलब ज़्यादा हो. ऐसा नहीं है, यंग एज में भी होता है, ऐसा नहीं है. हाँ, हाँ. बट लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड ऑल यूजुअली होता है. हाँ. तो मेनोपॉज इज ओनली रिलेटेड टू द हार्मोन्स, और कुछ और ये भी होते हैं उससे रिलेटेड? नहीं, मेनली रिलेटेड टू हार्मोन्स. मेनली रिलेटेड टू हार्मोन्स. ओके. तो ऐसा होता है कि ऊपर से अगर हम हार्मोन ले ले तो बैलेंस हो जाए? वही पहले दिया जाता था एचआरटी, अभी भी एचआरटी हम लोग देते हैं. लेकिन बट वी ट्राई टू वे द मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. किस लेडी को एचआरटी की जरूरत है? अगर बहुत ही सीवियर सिम्टम्स है तो ठीक है, एचआरटी दे दीजिए. अगर ठीक है, नॉर्मल सिम्टम्स है तो वी कैन गिव समथिंग लाइक एस्ट्रोजन, बट इट इज नॉट अ हार्मोन. लाइक जैसे मैंने बताया सर्म्स, ACRMS, उसको दे सकते हैं. या अगर वो कहती है कि वेजाइनल ड्राइनेस, बहुत मेनोपॉजल लेडीज ये करते हैं, शिकायत करते हैं, तो सम वेजाइनल लुब्रिकेंट्स या एस्ट्रोजन लोकल जेल्स इस तरीके से, या उनको हड्डी में दर्द हो रहा है तो कैल्शियम और दर्द का कोई दवा, इस तरीके से जो मतलब नॉर्मल दवा है इसी से काम चल सकता है. या थोड़ा बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस वगैरह होगा तो भी आजकल गायनेकोलॉजिस्ट ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि ये चार्टी ना दे के कुछ नए जो ड्रग्स आए हैं जो एस्ट्रोजन जैसे बिहेव करते हैं उनको देते हैं, उनको दिया जाए अल्टरनेटिव मेडिसिन. अगर जरूरत पड़े तो जरूर एचआरटी भी देते हैं. तो बेसिकली मेनोपॉज इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स अ फेज ऑफ लाइफ. जैसे हमारे मेंस्ट्रुअल्स शुरू होते हैं वैसे हमारे मेंस्ट्रुअल्स खत्म भी होते हैं. जैसे हार्मोन्स हमारे PMS के वक्त बदलते हैं वैसे ही ये भी होता है. तो देयर इज नथिंग, आई थिंक ये डिसऑर्डर या डिसीज की जैसे इसे ट्रीट नहीं करना चाहिए. बस आपको अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है. यू नीड अटेंशन. आपको भी, लेडीज़ को भी ये समझना चाहिए कि इस फेज में उनको भी अटेंशन चाहिए. एंड आई थिंक दे शुड कमांड कि अभी दिस इज़ माय टाइम, मुझे थोड़ा सा हेल्प करो. फैमिली को भी उनको बोलना चाहिए. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट बिकॉज ऑलवेज डोंट कीप सर्विंग. समटाइम्स यू कैन कमांड दैट पीपल शुड टेक केयर ऑफ यू, फैमिली. और आई थिंक ये न्यू जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यूरिंग मेनोपॉज, एंड आई हैव सीन वुमेन सफरिंग, बहुत वो सफ़र करते हैं. कुछ लोगों का तो मेनोपॉजल फेज बहुत साल तक चलता है, 6-6, 7-7 साल तक चलता है, राइट? लाइक आई हैव सीन इन पर्सन. तो वो हर बार उनका मैं उनको 5-6 साल से जानती हूँ और उनका भी वो वही फेज है. लाइक उनका अभी मेनोपॉज हुआ नहीं है, बट स्टिल एवरी टाइम शी हैव दैट मेनोपॉज थिंग विथ हर. तो ये काफ़ी लंबा भी होता है. तो आई थिंक न्यूट्रिशन, fitness, health, and of course self care, self love, and self respect also. You have right to ask नेक्स्ट जनरेशन की नाउ इट इज़ माई टाइम, आपको मुझे ये करना पड़ेगा. और न्यू जनरेशन को भी इसके बारे में अवेयर होनी चाहिए. आई थिंक ओल्डर जनरेशन जो मेनोपॉजल में है, दे शुड मेक सम फ्रेंड्स एंड कीप देमसेल्व्स एंगेज, बिजी, इन्वॉल्व इन सर्टेन मतलब डोमेस्टिक वर्क एक्टिविटीज, ताकि उनका फिजिकल एक्टिविटी भी चलता रहे. और एकदम बहू आ गई तो मतलब लेट के उससे पैर दबा के मतलब इससे भी ज़्यादा सेडेंटरी हो जाते हैं वो. तो ये दिक्कत आता है. तो
I think problems are in every direction. Generally. सास भी कभी बहू थी और कभी बहू भी सास बनेगी। हाँ। तो अभी वो जमाना चला गया है, सास बहू का जमाना चला गया है। इट्स ओनली वुमेन फॉर वुमेन। तो अगर बहू आती है तो उसको बेटी के जैसे ट्रीट करो, तो वो भी आपको मम्मी जैसे ट्रीट करेगी। तो और फिर अगर उसको भी पता है कि मेनोपॉज में वो भी जाएगी। ये एक तो बहुत ही मतलब मैं एक छोटे शहर से हूँ, तो एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को। हर एक बहू जब उसका प्रेगनेंसी में अगर हम कहते हैं बेड रेस्ट होना है, तो ठीक है हम मायके जा रहे हैं और उसी के मायके में उसका नंद जो है वो प्रेग्नेंट होकर के उसके घर आएंगे आराम करने। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो है बहू को ही बेटी समझ के इसी घर में उसको रेस्ट दे दिया जाए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि जब आपका बेबी होता है, मतलब जनरली बच्चे का नाम तो लड़के की तरफ से दिया जाता है, विच इज आई थिंक नॉट नेसेसरी। बट जब आपका बच्चा हो रहा है, बट उस बच्चे को जो कैरी करी उसका हमें नहीं ख्याल रखना है। उसका ख्याल रखने के लिए मैके भेज दो। और जैसे और इन सम प्लेसेस तो डिलीवरी भी पेरेंट्स को ही करनी पड़ती है, राइट? तो एक्सपेंसेस एंड ऑल, तो उसका बच्चा भी वो करे, बट जो बच्चा आएगा तो नाम होगा इनका। दैट इज आई थिंक दैट इज वेरी मीन एंड वो अभी चेंज होना चाहिए। ऑलरेडी हो चुका है। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ गर्ल्स दे देमसेल्व्स डोंट वांट टू, दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। कुछ एक्सरसाइजेस है जैसे कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। कीगल एक्चुअली क्या होता है कि इनको बहुत बार बार पेशाब आता है। जैसे रात में भी बार बार उठना पड़ता है। तो कीगल एक्सरसाइज होता है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। ये सब अगर हम लोग सिखा देंगे उनको, तो ये टेंडेंसी ऑफ बार बार जाना वो भी कम हो सकता है। कई चीजें हैं जो अगर हम लोग एजुकेट उनको करेंगे तो अपना लाइफ को आसान बना सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा दवा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ। तो कीगल एक्सरसाइज आप तब तक गूगल सर्च कीजिए, और हो सकता है हम अगली बार आपको दिखा दें कि कीगल एक्सरसाइज होती क्या है। थोड़ा सा मतलब इस ड्रेस में नहीं दिखा सकते। हाँ, ऑकवर्ड है। नहीं, किसी भी ड्रेस में दिखाना ऑकवर्ड है। अच्छा, तो आप गूगल सर्च ही कर लीजिए। फिर हम वो नहीं दिखा पाएंगे। बट यस, हाँ, यूरिनेशन का आई थिंक वन ऑफ द worst symptom. I think they don't have a control over urination, और काफी frequent urination होता है, hot flashes होते हैं, memory loss होता है। I think most of the time it's a memory loss. And lack of sleep. Lack of sleep, ये टेम्पररी होते हैं या ऐसे ही चलते रहते हैं? धीरे धीरे फिर सही हो जाते हैं। Then they get adjusted to it, and if we supplement them with good nutrition and certain small time medications, they will be all right. They will be all right. Okay. तो these are temporary symptoms. ये कोई disorder नहीं है, कोई disease नहीं है। तो इसको ऐसे हल्के पे लेना कि हाँ बूढ़ी है, सटिया गई साइड में, ये मतलब it's a no they say that. Yeah, it's a wrong attitude. We should understand. हाँ, आंटी हो गए, आंटी is behaving. No, because मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि इट वाज अ वेरी बैड, एंड दीज वर लाइक ए लिस्टेड एक्टर्स जो बोल रहे थे कि आंटी इज गोइंग थ्रू, tomorrow she is also going through, that auntie is going through menstrual phase and menopausal this thing, इसलिए वो ऐसी बिहेव कर रही है, सठिया गई है, the same words what you have said. तो this is I think it is something that draining a woman down, राइट? तो वो नहीं होना चाहिए। मेनोपॉज हर कोई जाएगा, जिस लेडी का मेंस्ट्रुअल शुरू हुआ है उसका मेनोपॉज भी होगा। और इट वाज वेरी these are all phases of life which a person cannot avoid. Exactly. We have to go through. True. So it was very enriching discussion with Dr. Anita. वो हमारी रेनिंग क्वीन है मिसेस इंडिया की। वो एक बहुत ही जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और इनका डांस तो पूरे इंडिया ने देखा है, जो वायरल हुआ था ड्यूरिंग पैंडेमिक। तो एंड इट इज़ वेरी एजुकेटिंग, जो आपने जो बताया, इट इज़ वेरी एजुकेटिंग, एंड आई थिंक एज अ रेनिंग क्वीन शी हैव द ड्यूटी ऑफ स्प्रेडिंग मोर एंड मोर। वो IVF स्पेशलिस्ट भी हैं और IVF भी करती हैं। वो बहुत सारे नए बच्चों को जिनको जो कंसीव नहीं कर सकते उनको भी हेल्प करती है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया यहाँ पे जो हमारे साथ खड़ी है, जिनके सर पे अभी क्राउन है, और ऑफ कोर्स उनके शोल्डर्स पे तो हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डॉक्टर की। तो हम लोग मिसेस इंडिया पे हम ऐसे ही बहुत सारे वुमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़ बहुत सारे डिस्कस करेंगे। तो अभी बस शुरुआत है, उनका रहना भी शुरू हुआ है अभी, और बाकी बहुत कुछ है। तो बने रहिए मिसेस इंडिया पे। And with me we have Classic Mrs. India winner 2021, Dr. Anita. So Anita, you have anything to say for a woman, especially the menopausal women के बारे में? देखिए, हम लोग जब फ्लाइट में जाते हैं तो
जो फ्लाइट अटेंडेंट है वो पहले आके बोलती है कि ऑक्सीजन मास्क जब गिरेगा, पहले अगर आपके पास बच्चा है तो पहले अपना उसको लगा लो, तब बच्चे को लगाओ। वी हैव द टेंडेंसी पहले बच्चे को लगाते हैं, अगर आप ही मर जाएंगे तो वो बच्चे तो उठा के फेंक ही देगा। तो आपका फैमिली का देखभाल आपको करना है, हम मानते हैं उस बात को, लेकिन जब तक आप सही रहेंगे तभी तो आप आपका फैमिली का देखभाल करोगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप पहले सेल्फ केयर करिए, आपका हेल्थ को सही रखिए, तभी आप अपना फैमिली का देखभाल कर पाओगे। तो बिल्कुल, प्लीज टेक very केयर good. ऑफ योरसेल्फ। Yes, take care of yourself, girls. So on Mrs. India, we take your leave. Bye bye. Bye-bye. Don't forget to subscribe, like, and share.